Well, students, good morning to you all. Today we are going to discuss Heisenberg's uncertainty principle, class 11, chapter 2, structure of atoms. Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. This is the second step of towards quantum mechanics. First step is de Broglie equation. De Broglie equation is lambda is equal to h upon p. P is momentum, m into v. It correlates when a body or mass is moving. It does not having only mass, it have also velocity. The mass into velocity is called momentum. H upon p. It is valid only for microscopic particles like electron and smaller than electron. The Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg tries to find out the position and velocity of electron in the atom. इन द एटम के अंदर वो खोज रहा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, पोजीशन इलेक्ट्रॉन का क्या है और वेलोसिटी क्या है. सपोज इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है, दिस इज इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए इसको वेव छोड़नी पड़ेगी, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता ही बदल देता है, लो अपना रास्ता ही बदल दिया. तो कैसे पता लगेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ है और इसका पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है. क्योंकि छोटा इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन इज डायमेंशनलेस पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल है. छोटे पार्टिकल को देखने के लिए कम वेवलेंथ, अगर छोटा पार्टिकल है तो ज़्यादा वेवलेंथ है तो पार कर जाएगा. छोटा वेवलेंथ का है तो इससे टकराएगा. टकराने के बाद मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है. टकराएगा. अब छोटा जैसी वेवलेंथ करेंगे उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी. जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, ठीक है ना. एनर्जी बढ़ जाएगी तो मोमेंटम बढ़ जाएगा. और पार्टिकल से लाइट टकराने के बाद पार्टिकल जो है अपनी जगह से छटक के दूर चला जाएगा. तो एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालना बहुत मुमकिन है. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल, इट इज impossible to find exact position or momentum or velocity of electron. We stated that mathematically delta x is the uncertainty in position into delta p, uncertainty in momentum is never less than h upon 4 pi. H is Planck's constant. Or you can say that delta x into delta m into v is never less than h upon 4 pi, or delta x into delta v is never less than h upon 4 pi mass of electron. So delta x into delta v is the uncertainty product. चलो निकालते हैं कोई एग्जाम्पल लेकर के. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटे पार्टिकल का. सपोज 1 मिलीग्राम. सपोज मास ऑफ पार्टिकल इज, एग्जाम्पल, मास ऑफ पार्टिकल इज 1 मिलीग्राम. दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 kg. तो डेल्टा एक्स, इसमें ग्रेटर और लेस देन से घबराने की जरूरत नहीं है. आप बराबर करके सवाल लगा लीजिए और लास्ट में आंसर में ग्रेटर और इक्वल टू लिख दीजिएगा. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी
delta x into delta v is equal to h upon 4 pi mass of the particle is 10 to the power minus 6. This is equal to h is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second upon 4 into 3.1416 into 10 to the power minus 6. It is almost equal to माइनस 6 ऊपर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा. ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू, चलिए कोई बात नहीं, ये आपका हो जाएगा लगभग 10 टू द पावर माइनस 28 अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट is 10 to the power minus 28 पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. It is very less. Undoubtedly it is negligibly small, unmeasurable. Therefore 1 milligram particle does not have any uncertainty in product or velocity. We can measure up to accurate value. Suppose we can find the uncertainty product of electron. Uncertainty product of electron is never less than h upon 4 pi mass of the electron. It comes out to be delta x into delta v is never less than it is almost equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 upon 4 into 3.1416 into 9.1 into 10 to the power minus 31. It comes out to be nearly equal to 10 to the power minus 4. 10 to the power minus 4. Uncertainty product is 10 to the power minus 4. Suppose it is also a very less quantity. Therefore, we cannot have delta x or delta v for an electron. चलिए CGS सिस्टम में खोजते हैं अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट कितना है तो ज़्यादा समझ में आएगा. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल नेवर लेस देन h upon 4 pi mass of electron. So this is equal to 6.6 into 10 in CGS system. Centimeter gram second system. So h is equal to 10 to the power minus 27. 10 to the power minus 27 arg second upon 4 pi mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 28 gram. It comes out to be nearly equal to 0.58, or you can say that 60%. It means that the uncertainty in the finding position or velocity of an electron is more than 60%. It is very large quantity. आपका 60% से ज़्यादा एरर है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी खोजने में. 60% से ज़्यादा एरर है, इन दोनों का प्रोडक्ट 60% से ज़्यादा है, तो कैसे खोजेंगे? ये तो एकदम बात होगी. अच्छा, ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये आपका
ये अनसर्टेनिटी एरर नहीं है, ये अनसर्टेनिटी ऐसा है जो हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, छोटे पार्टिकल के लिए हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये हर चीज़ में एरर है, ये फंडामेंटल टाइप का एरर है, ठीक है ना। ये कोई अनसर्टेनिटी परसेंटेज एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर या और किसी प्रकार का एरर नहीं है, ये फंडामेंटल टाइप का एरर है, हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी आप स्मॉल पार्टिकल के लिए बात करेंगे उसमें 60% से ज़्यादा एरर है, तो सही कितना है जब 60% एरर हो गया। तो इसका मतलब जो हम लोग बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में चक्कर काटता है, ये बात अपने आप नहीं सही नहीं है। अब हम प्रोबेबिलिटी की बात करनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना एटम में कहाँ पर कितनी है। इसमें इस टाइप के भी सवाल आ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इन द प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड into the nucleus, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता है। अब इसको कैसे करेंगे सवाल को हल, अब इसमें हाइजेनबर्ग लगाएंगे, ठीक है ना। तो हाइजेनबर्ग के लिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, delta x into delta v is never less than h upon 4 pi mass of electron, 4 pi mass of electron, ठीक है। तो न्यूक्लियस की साइज होती है फॉर न्यूक्लियस डेल्टा एक्स, फॉर न्यूक्लियस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो डेल्टा V इज इक्वल टू h 6.6 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻⁻31 into delta x 10⁻⁻15. This comes out to be 10⁻31 और -15 46 बजेगा। तो 6.6 into 4 pi 9.1, its value is 0.058 into 10⁻⁻12 meter per second. It means that 5.8 into 10⁻+12, 10⁻8, 10⁻10 meter per second. It is more than light. It means that electron cannot reside into the nucleus. ओके, समझ आ गई बात। जो नेगेटिव वाले क्वेश्चन होंगे या प्रोबेबिलिटी वाले सब इसी से लगेंगे। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज नेवर लेस देन h अपॉन 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू जो आती है ना, याद कर लीजिए, इसकी वैल्यू जो है आपकी, इसकी वैल्यू 0.058 है, 0.058 या 0.06 भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमें समझ में आ रहा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे सवाल लगते हैं, एग्जामिनेशन में भी आते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पाल सर। थैंक यू।